to his 1.7 meter tall, right? He went to the see the tower of the his house near to his. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर डायग्राम बना लेंगे तो सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएगी, राइट? मैं एक्चुअली घर जो है वो भी सारी चीजें बना ही रहा हूँ। ये जो है ये हमारे पास डिस्टेंस, राइट? इस डिस्टेंस को यहाँ जो हमारे पास मीनू करके है, जो लड़की है मीनू, उसकी हाइट जो है 1.7 मीटर है। तो ये वाला जो स्पेस है वो कितना आपका 1.7। क्लियर? अब यहाँ से इस टावर की हाइट जो है वो तो यहाँ से यहाँ तक है, राइट? तो इसको मैंने h कंसिडर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 1.7 मीटर। क्लियर? उसके बाद दूसरी देखिए टावर की डिस्टेंस देखिए, वो घर से ये घर से इसकी डिस्टेंस है 20√3, राइट? ये होम है आपका जहाँ पे वो, राइट? हमें क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी h कैलकुलेट करना है, कैपिटल h में, क्योंकि ये का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दे रखा आपको 30 डिग्री दे रखा, राइट? तो देखो 30 यानी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की जगह कितना डिग्री है 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर h माइनस 1.7 अपन बेस कितना है इसका, बेस देखिए 20√3। क्लियर? tan 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 1.7 अपन 20√3। इस √3 से ये √3 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इज इक्वल टू h माइनस 1.7। तो h इज इक्वल टू आ गया 20 प्लस 1.7, that is equal to 21.7 meter. That is the height of the tower. Clear? Next question. I figure the ABCD is describing of the quadrant OA is equal to 15 degree, right? And the area. सबसे पहले we find the area of square. Then area of square is equal to कितना होता है, side square तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 15 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सो फर्स्ट इन फाइंड OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस वी जॉइन दिस OB, दिस इज 90 डिग्री, तो AB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, OA 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 15 225 प्लस 225। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट इज 2 into 15 स्क्वायर, राइट? देन OB इज इक्वल टू √2 or 15 centimeter. Then area of quadrant is equal to pi r square theta upon, sorry we don't need, so we are using the direct formula of quadrant, that is pi r square by 4, right? 1/4 pi is equal to 22/7 into radius is equal to the 15√2 into 15√2, right? ये 11 और 2, ये 2 that is equal to 2, तो 11 into 225 upon 7, तो 11 यानी 225 और 225 that is equal to 2475, और डिवाइड करेंगे 7 से, 2475 डिवाइड करना 7 से, 7 3 21, रिमाइंडर आ गया 3,
7, 7 5s are 35, 7 5s are 35, 2, 7 3s are 21, 4.40, 7 5s are 350, 353.5 centimeter square. Then area of shaded region is equal to area of quadrant minus area of square. Area of quadrant is equal to 353.5 minus area of square is equal to 225 is equal to 0.5, 13. Sorry, 13 means if and then is 4 means together 2 or 128 centimeter square. That is the area of this shaded region, this one and this, right? Next, proceed the next question. Again, a very important questions. And the area of shaded in ABCD of rectangle of side 8C. Yeah, 10 and 6. How much? It is done by using the triplets. Okay. First we find AC square. AC square is equal to AD square plus DC square. Then AD is equal to 6 square plus 8 square. 6 square is equal to 36 and 8 square is equal to stop there. That is equal to 100. Then AC is equal to root of 100. Then AC is equal to 10 centimeter, right? Then area of rectangle. Then the radius is equal to AC by 2, that is equal to 5 centimeter. Then area of circle is equal to pi r square. Pi is equal to 3.14 into r is equal to 5 into 5. पॉइंट हटाएंगे that is equal to 100. 5 1 जा 5 2 जा 20. 20 का हाफ हो गया तो that is equal to 314 upon 20 into 5. 5 4 जा तो 314 upon 4. 4 7 जा 28, 29 33 34 8 4 32 225 times 78.5 centimeters square. Then area of rectangle is equal to L into B, that is 8 into 6, 48 centimeter square. Then area of shaded region is equal to area of circle minus area of rectangle, right? Then area of circle is equal to 78.5 minus area of rectangle is equal to 48, then is equal to 30.5 centimeter square. That is the area of this and this shaded region, right? Proceed for the next question. Now find the mode of the mode. Yes, find the mode. And highest frequency is equal to 40, that is f1, that is f0, that is f2, that is L. Then mode is equal to the formula of mode is equal to L plus f1 minus f0 upon twice of f1 minus f0 minus f2 or into h. H is the interval, that is equal to 5, right? Then L is equal to lower limit, that is the 35 plus f1 50 minus 34 upon 2 into 50 minus 34 minus 42 or into h5. And 35 plus 16 upon 100 minus 6 or 76 into 5. So 35 plus 16 upon 100 minus 75, 24 into 5. 4 4 ja or 4 6 ja, 2 ja or 3 ja. Then 35 plus 10 upon 3. तो ये हो गया 35 plus 3.3 and that is equal to 38.5 cent. Sorry, no units. Right? And then the mode is equal to
mod is equal to 38.5. The next question, if alpha, beta and gamma are the zeros of polynomials. तो देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम, प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है सी अपॉन ए, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सी जो है, अभी मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ, अल्फा बीटा प्लस सॉरी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल, एक बार पॉजिटिव वाला लेते हैं, पहले पॉजिटिव वाला कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और लास्ट जो होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। तो ये हमारे पास होता है सी अपॉन ए, सी कितना आपका -5 और ए आपका है 6, राइट। और फिर मैं निकालता हूँ आपके पास में एक बार अल्फा बीटा और गामा, यानी माइनस डी अपॉन ए -1/6, राइट। तो देखिए ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, कैसे लिखा है मैंने, यहाँ ये रेसिप्रोकल है तो इसको पावर नीचे लेंगे तो पॉजिटिव बन गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा अल्फा बीटा और गामा, कितना होता है यहाँ पे बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, राइट, इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू है -5/6 डिवाइड में कितना -1/6, राइट, माइनस तो माइनस कैंसिल, 6 कैंसिल, आंसर आ गया 5। नेक्स्ट 27 का और पार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। 27 का और पार्ट डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, तो यहाँ हो गया 3x4 माइनस 9x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k, डिवाइड किससे करना है हमें, 3x स्क्वायर माइनस 5 से, कितने टाइम्स 3x स्क्वायर टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x स्क्वायर टाइम्स ओनली, राइट, x स्क्वायर टाइम आएगा ये, x स्क्वायर टाइम करेंगे तो ये बनेगा 3x4 और माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, -9x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k, कितने टाइम्स -3x टाइम्स, तो -3 3 से 9x³ और -3 से 15x प्लस 15x, साइन चेंज, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कैंसिल आउट 6x स्क्वायर प्लस k, कितने टाइम्स +2 टाइम्स, तो 6x स्क्वायर और -10, साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट, तो k + 10, राइट, तो रिमाइंडर 0 है, फैक्टर तो k + 10 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -10 हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिस्टम हैज द infinitive many solutions, infinitive many solutions, that the condition is that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, a1 upon a2 is equal to c upon a2, that is c और a2 हो गया 12, c upon 12 is equal to b1 3 upon b2 c is equal to 3 minus c upon minus c, right, first using that c square is equal to 12 into 3 36, तो xc is equal to plus minus 6, ये हमारे पास वैल्यू we can use also here, right, then no need। Then second one, find the value of a unique solution, unique solution, thus a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 for the unique solution conditions, right, a1 is x, sorry 1, a2 is 3, is not equal to b1 2 upon k, right, so k is not equal to 6 except k, right। Next question, that if the 10th term of p is 15 into
52 and 17 term is equal to 20 more than 30 10 term a10 is equal to हमारे पास है 52 राइट और a17 is equal to a13 plus 20 right a10 is equal to a plus 9d is equal to 52 a17 a plus 16d is equal to a13 a plus 12d plus 20 right a can 16 minus 12 4d is equal to 20 so d is equal to 5 ये first condition d तो a plus 9 into 5 is equal to 52 so a is equal to 50 to 9 5 is 45 so a is equal to 7 right a and d find the ap so first is a plus d a plus 2d a plus 3d that is the ap right a हमारे पास 7 7 plus 5 7 plus 2 into 5 और 7 plus 3 into 5 7 12 17 15 plus 7 22 right it is the ap next question the sum of the first four terms of ap is 40 S4 is equal to 40 and first 14 terms S14 is equal to 280 right find the sum of the first n terms okay S14 क्या ये हो गया Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d तो Sn कितना है 40 is equal to 4 by 2 2a plus 4 minus 1 3d right तो 42 और 2 से 20 20 is equal to 2a plus 3d first equation right and second equation S14 तो S14 is equal to 280 is equal to n by 2 यानी 14 by 2 2a plus 13d is right तो ये 7 times 7 4 जा 40 तो 40 is equal to 2a plus 13d and 20 is equal to 2a plus 3d एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे ये नेगेटिव कैंसिल आउट यहाँ 20 is equal to 10d तो d is equal to 2 आ गया राइट यूज d तो 20 is equal to 2a plus 3 into 2 तो 20 minus 3 to 6 is equal to 2a तो 14 is equal to 2a तो a is equal to 7 dn ap कितना हो गया sn निकालना है sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 right then n कितना है नो a कितना है आपके पास 7 plus n minus 1 और d कितना है 2 तो ये हो गया n by 2 into 14 plus 2n minus 2 तो बन गया हमारे पास n by 2 और ये हो गया 2n plus 12 उससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो n by n और n plus 6 आ जाएगा दैट इज द सम ऑफ Sn तो Sn is equal to n plus 6 for this AP clear next question 31 two right angles triangles one question two right angle triangle on BC so we consider the base BC first one ABC right ABC this one is first triangle 90 and second one DBC that is second one triangle right DBC DAC right and prove that AP is equal to AP so we consider the two triangles that is first one and second right triangle APB and triangle DPC first one is angle APB is equal to angle DPC that is the vertically opposite angle and angle A is equal to angle D
is equal to 90 degree, that is given to right angle given, right? So we consider though both the get result triangle by AA similarity rule, right? Triangle APB similar to triangle DPC. Triangle similar to triangle, then similar triangle say ratio is equal, and AP upon DP is equal to AP upon BP is equal to BP upon PC या CP, राइट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AP इंटू PC इज इक्वल टू DP इंटू BD. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. tan थीटा फर्स्ट वन 32, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट होता है 1 अपॉन tan थीटा, राइट? प्लस कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, LHS, right? Then tan theta upon 1 upon 1, tan theta is LCM, and tan theta minus 1, right? Minus common 1 upon tan theta, minus common लेंगे तो बनेगा tan theta minus 1. tan theta ऊपर तो ऊपर बन गया tan square theta upon tan theta minus 1 minus 1 upon tan theta और tan theta minus 1. Then next tan theta और tan theta minus 1. First one tan theta, tan cube theta minus 1 cube, a cube minus b cube is equal to a minus b, right? A minus b हो गया tan theta minus 1, and second one a square, tan square theta plus 1 is a 1 plus tan theta into 1, tan theta into 1 upon tan theta और tan theta minus 1, sorry, tan theta minus 1, tan theta minus 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta upon tan theta plus tan theta upon tan theta, राइट? अलग अलग डिवाइड कर दिया. सेक होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस tan थीटा 1 कोस से 1 कोस कैंसिल, 1 अपॉन कोस होता है sec theta 1 upon sin cosec theta plus 1. That is our final answer. Clear? Next, prove that the tangent, both very simple questions, that is a circle and that is the diameter. One tangent is here, sorry थोड़ा सा circle, first tangent is here and second is here. That is the diameter which is passes through the center. We know the radius and tangent is perpendicular, radius and tangent is perpendicular, 90 degree. These are the alternate angle x and y. These are the alternate angles are equal. So we can say hey, lines parallel, यानी AB and CD, right? ये है, this is O, ये P and Q. Angle APO is equal to angle DQO, right? That is the alternate angles, right? Alternate angle is when AB parallel to CD. That is the best concept, right? Proceed with next question. Start playing the games, right? So playing the games under two
numbers is product is 25 and the square of 25, right? Then first one is the product. 25 is possible only 5.5. Then probability of Peter is equal to 1 upon 36 क्योंकि total number of outcomes 36. Reina throw a dice, right? And the square of a number, only square of a number we find, that is equal to only one time die, one time toss of a die, right? One time dose and on square over 5, right? And 5 is only 1. The probability of which Reina is equal to 1 upon 6, which is greater because 1 upon 6 is greater 1 upon 36, right? Next, proceed to the next question. The roots of this quadratic equation is n, right? First one we check, that is the roots are equal, then b square minus 4ac, b square minus 4ac equal to 0. B is equal to twice of this, to minus 2 bracket a square minus bc and whole square. B square minus 4a is equal to c square minus ab, c b square minus ac equal to 0. Then 4a square minus bc square is equal to 4c square minus ab or b square minus ac. 4 cancel out, a square, so a raised to power 4 plus b square c square minus 2a square bc is equal to b square c square minus ac cube minus ab cube plus a square bc. Then b square c square cancel, a square bc and okay, and a4 minus 3a square bc minus ac cube minus ab cube equal to 0. Common, then a cube minus 3abc minus c cube, sorry, plus c cube or plus ab cube, right? Plus c cube plus b cube is equal to 0. Then a is equal to 0 and a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0. Then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. That is our final. Right? Proceed for the next question. Find the ratio in which xy line है, that is the line. We take ratio is k ratio 1, right? Then x3 is equal to k x2 plus x1 upon k plus 1. That is our formula. And y3 is equal to k y2 plus y1 upon k plus 1. The x3 is equal to 0.02, right? X3 is equal to, no idea, x3 is equal to k x2 is 6, 6k plus 2 upon k plus 1. Similarly, y3 is equal to y2 is 3k, sorry, 3k plus y1 plus 5 upon k plus 1. Equation x minus 3y is equal to 0. So x is equal to 3y. X is equal to 6k plus 2 upon k plus 1 is equal to 3k plus 5 upon k plus 1. K plus 1 cancel. So 6k plus 2 is equal to 3k plus 5. So 6k
-3k is equal to 5 minus 2. तो 6 के 3k is equal to 3, k is equal to 1. Then ratio is k ratio 1 is equal to 1 ratio 1. That is the midpoint, right? Midpoint. Next question. Is divided by x-axis, then the coordinate of x-axis x comma 0, right? Then y3 is equal to 0, then y3 is equal to k y2 plus y1 upon k plus 1. So 0 is equal to k y2 is 5 minus 3 upon k plus 1, cross multiply, तो 5k minus 3 equal to 0, then k is equal to 3 upon 5. Then coordinate x3 is equal to k x2 plus x1 upon k plus 1, right? x3 is equal to x is equal to k 3 upon 5, x2 is equal to 4 plus 1 upon 3 upon 5 plus 4 1, sorry, that is equal to 12 plus 5 upon 5 or 3 plus 5 upon 5, 5 to 5 cancel, 12 plus 5 17, 17 upon 8 our answer. Then coordinates of p is equal to 17 upon 8 comma 0. Proceed for the next question. Draw the pair of the tangent. I will, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. जैसे एक सर्कल है, यहाँ पे ये दो टेंजेंट्स मान लीजिए यहाँ पे, राइट? इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री, क्लियर? एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर और इसको भी हमने जोड़ दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर. तो ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट और ये आपका ओ, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ. देखो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ से किसी एक रेडियस ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये ओ और ये आपका बी पॉइंट. अब देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री. यहाँ से हम लोग 120 डिग्री एंगल बनाएंगे जो कि इस तरह से जाएगा, ये आपका ए पॉइंट आ जाएगा. फिर यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, दोनों जहाँ मैच होंगे वो हमारा पी पॉइंट आ जाएगा. और ये जो हमारा एक्स मेजरमेंट है वो कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री. इस तरह से हम बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two poles are opposite each other on one side of the road, 80 मीटर वाइड. क्लियर? देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारे पास दो पोल है सेम हाइट के, राइट? और इनकी हाइट मैंने h कंसीडर करी है. ये रोड है जिसकी विड्थ जो है 80 मीटर है. तो मैंने क्या किया, यहाँ से x मीटर कंसीडर किया, यहाँ कोई पॉइंट लिया p, यहाँ से यहाँ तक x मीटर कंसीडर किया, तो ये हो गया 80 माइनस x. क्लियर? अब यहाँ से इन दोनों टावर्स का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंजेस हैं. फर्स्ट जो है ये हमारे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और सेकंड वाला हमारे पास है 30 डिग्री. ये दोनों डिग्री. आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स h निकालना है. सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल नंबर 1 में मैंने क्या किया, tan थीटा यूज किया. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस कितना है x. tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x. तो h इज इक्वल टू x √3, राइट? फिर हमने ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर tan थीटा यूज किया. tan थीटा यानी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस कितना हो गया 80 माइनस x. tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h कितना है x √3 अपॉन 80 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 3 बन जाएगा, यानी हमारी नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x. 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू आ गया 20, राइट? यहाँ से डिस्टेंस अब हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x √3 के इक्वल, यानी 20 √3 हमारी हाइट आ गई. तो इस साइड से हम लोग करेंगे तो वो 60 आएगा और इस साइड से 20 आएगा, दोनों साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 38 होगा. 39 क्वेश्चन देखिए. 39 में AC हमें गिवन है, हमें ये पता है कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है.
तो ये वाला हमारे पास 24 है और ये वाला हमारे पास 7 है। पाइथागोरस मेथड से BC स्क्वायर निकालेंगे। BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले तो। ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 होता है 576 प्लस 49, ये दोनों इक्वल होते हैं 625 के, राइट। तो यहाँ से BC की वैल्यू आपको पता ही होगा 25, तो ये 25/2 और ये भी कितना 25/2। अब देखिए यूँ कहें कि ये 90 बना हुआ है, इसका मतलब अब सर्कल का 1/3 हो गया है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, राइट। तो 3/4 लिख लूँ क्योंकि 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट कवर है, राइट, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 3/4 पाई आपका कितना है 22/7 इंटू पाई का हमें गिवन नहीं है तो हम लोग उसकी तरह यूज करें 22/7 इंटू रेडियस कितना है 25/2 इंटू 25/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर, ये हमारे पास अब जो कुछ कट रह गया ये यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ हो गया हमारे पास से अभी रुको, अभी हम लोग क्या करते हैं 3/4 पाई इंटू 625/4 कर लेते हैं। तो ये हो गया 75 18 पाई अपॉन 16, ये हमारे पास आ गया। फिर एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 24 और हाइट कितना है 7, तो ये हो गया 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेडेड रीजन ट्राइंगल का एरिया 1750 और इंटू 22/7 और यहाँ पे 16 माइनस 84। इसको आप जो भी सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 contain the radius of 6 height is full of ice cream which is distributed 10 children in equal cones having hemispherical shape। देखिए मैं इसको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, ये हमारा सिलेंड्रिकल है, ये आइसक्रीम से फिल है, राइट, आइसक्रीम फिल कर देते हैं इसमें। यहाँ से हम कोन बना रहे हैं, कौन कौन सा शेप का बना रहे हैं, कौन शेप के उसके हेमिस्फीयर ऐसा बना हुआ है, राइट, ये इस तरह से बना रहता है। फाइंड द 4 times its base, ठीक है, if the height of the conical portion is 4 times of its base, बेस के 4 times, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द रेडियस, ओके, देखिए क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, रेडियस हमें निकालनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन लिख रहा हूँ मैं। आइसक्रीम कोन इसलिए क्योंकि इसमें हेमिस्फीयर भी इंक्लूड हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आइसक्रीम में क्या क्या है हमारे पास, एक तो कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन के बाद में हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो सबसे पहले चेक करो क्या क्या घट रहा है, पाई से तो पाई सब जगह से कैंसिल कर देते हैं एक बार। तो कैपिटल आर इसका रेडियस है 6 इंटू 6 और इसका एच जो है वो हमारे पास है 15 इज इक्वल टू 1/3 इंटू आर। किसका रेडियस देखना है हमें, equal cones having the hemispherical shape on the top if the height of the conical portion is 4 times of its base radius। तो h जो है वो दे रखा है 4r के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे हो गया r स्क्वायर इंटू 4r प्लस 2/3 इंटू आर क्यूब। तो देखो ये बन गया 6 इंटू 6 इंटू 15। अभी हम लोग कट नहीं करें, 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखो यहाँ बन गया 4r³ प्लस 2r³ कितना हो गया 6r³। तो 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6r³। कुछ बचा 2r³, 2 से 3 इंटू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू r³
तो आर क्यूब जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 18 इंटू 15 और इसकी पावर 1/3 जो कि हमारा सर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें निकालना क्या है। सबसे पहले ये देखिए मीडियन निकालना, तो मीडियन के लिए हमें सी एफ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये कॉलम बना लेता हूँ और सी एफ कैलकुलेट। सबसे पहले देखो 2 2 5 7 7 6 13 13 प्लस 8 21 21 31 31 6 यहाँ पे और 5 यहाँ 56 और फिर ये हो गया 6 और 76 14 कैरी 1 7 8 9 94 98 और 100। तो सबसे पहले तो n/2 निकाला हमने, तो n/2 100/2 यानी 50। 50 से जस्ट अबव सी एफ कौन सी है, ये है हमारे पास, तो इसको मैंने राउंड कर लिया। क्लियर। तो मीडियन के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना हमारे पास लोअर लिमिट 25 प्लस n/2 हमने निकाली है 50 माइनस सी एफ जो है था ये वाली वैल्यू होती इससे पहले वाली, सी एफ हो गया 31 अपॉन इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 25 और एच कितना आपको पता ही चल रहा होगा 5 का गेप तो 5। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 50 माइनस 1 यहाँ पे 9 4 में से 3 19 अपॉन 25 इंटू 5 5 5 जा 5 से कैंसिल करते हैं तो 25 प्लस 5 3 जा 15 45 8 जा तो ये हो गया 28.8। क्लियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन की वैल्यू। क्लियर। थैंक यू सो मच क्लास।